Good morning, children. So this is part 2 of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. I hope you have understood the first part, and the part 2, that is from page 20 it starts. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. So he is saying that day मतलब क्या होता है? That day means वही दिन, ये inauguration दिन का बारे में बोल रहा है. वो दिन had come through the unimaginable sacrifices of thousands. He is saying हजारों आदमी का बलिदान, वो सोच भी नहीं सकता है. नेल्सन मंडेला बोल रहे हम सोच भी नहीं सकता है कितना आदमी, हजारों आदमी अपना जान बलिदान दिया है. जो suffering, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. He's saying, he's thinking about the people who had died for this cause, for this day. ये दिन के लिए बहुत आदमी लोग बहुत कष्ट उठाया और बहुत हिम्मत आदमी लोग आगे आया और कष्ट उठाया. और वो दिन, वो लोग का कष्ट हम लोग गिनती में गिन नहीं पाएगा और वो हम लोग झुका भी नहीं पाएगा. I felt that day, as I have so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. See, he's saying, I felt that day. That day means the day which they got the freedom. That inauguration day को बोल रहा है, that day. As I have so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. नेल्सन मंडेला बोल रहा, मैं बस उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे. सो उस दिन का अलावा और दिन में भी हम सोचते थे, क्योंकि मैं सिर्फ एक अफ्रीकन देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गया है. सिर्फ मैं ये आज़ादी नहीं लाया, मेरा जो पूर्वज लोग जो ये देश के लिए लड़ा है, देश के लिए फाइट किया, वो लोग, सिर्फ वो लोग का वजह से ये आज़ादी मिला है. उसमें एक पार्ट है सिर्फ हम. That long and noble line ended and now began again with me. So he is saying, वो लंबा लाइन, long and noble line ended, खत्म हुआ है. What is this long and noble line ended? मतलब the people who sacrificed. He is talking about the people who sacrificed. उसका बारे में, that long and noble line मतलब जो आदमी जो पहले ये देश के लिए लड़ा, अपना राइट्स के लिए, ब्लैक आदमी का राइट्स के लिए जो लड़ा है, उसका बारे में बोल रहा है. वो ख़त्म हुआ और अभी हमसे शुरू हुआ है, और वो लड़ाई हमसे शुरू हुआ है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means done. So he is saying, I was pained, हमको दर्द हुआ, जो that I was not able to thank them. मैं वो लोग को थैंक यू नहीं बोल पाया. कारण क्या है? वो लोग आज जिंदा नहीं है, इसलिए उनको वो सोचता है तो आज का दिन में उनको गर्व हो रहा है, क्योंकि आज़ादी मिला है. वो लोग का राइट्स के लिए वो लोग का आज़ादी मिला है. लेकिन जो अपना पूर्वज लोग जो देश के लिए लड़ा है, वो आज यहाँ नहीं है ये अच्छा दिन देखने के लिए. और he is saying that they were not able to see what their sacrifices had brought. इसलिए उनको दर्द है, क्योंकि वो लोग का जो बलिदान है वो आज वो लोग जिंदा नहीं है देखने के लिए. He is saying, मुझे दर्द हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ. So he is not able to thank them because they are not alive. So
this is what he is saying, the people who sacrificed, that long and noble line ended, now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. So the policy of apartheid, रंग भेद का जो नीति, apartheid means जो discrimination, वर्ग विवेचन, उसका बारे में बोल रहा है apartheid. ये policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये एक गाव बना दिया था. रंग भेद का ये नीति ने मेरा देश और मेरा लोगों में एक गहरा और स्थायी गाव पैदा कर दिया है. All of us will spend many years, हम लोग बहुत साल बिताएगा. हो सकता है हम लोग का जनरेशन मीन्स पीडीओ. जनरेशन का मतलब है जो पीडीओ मीन्स जो नेल्सन मंडेला बोल रहे अपना बेटा और बेटा का बेटा. सो दैट इज जनरेशन. वो जनरेशन लोग तक नहीं भूल पाएगा ये जो दर्द, जो अपार्थाइड जो किया हुआ, अपार्थाइड का वजह से जो उन लोग को कितना गहरा डीप वुंड, वो डीप वुंड के बारे में बोल रहा है. वुंड मीन्स गाव. वो गाव अभी तक नहीं सूखा है और अपना जनरेशन तक वो नहीं सूखेगा. तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट profound hurt. Profound means deep, gahra. Generations means PDO. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Timbus, the Walter Sislus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadalus, the Bram Fishers, the Robert Subickips of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. So he is saying, but the decades of oppression, दशकों का cruelty, brutality, निर्दयता, निष्ठुरता, ये सब cruelty, oppression. What is the meaning of oppression? अत्याचार, जुलूम, brutality, निर्दयता, निष्ठुरता, ये सब का चलते एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ. ये अनइंटेंडेड इफेक्ट मीन्स अनपेक्षित प्रभाव, इफेक्ट हुआ, मतलब सोचा भी नहीं है उस तरह का इफेक्ट हुआ. इफेक्ट क्या था? बहुत फ्रीडम फाइटर्स आगे आया है ये राज्य में, ये कॉज के लिए बहुत फ्रीडम फाइटर्स आया है. सो दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर टिम्बूस. See here, the Oliver Timbus, the Walter Sislus, the Chief. You can see in the picture of Oliver Timbu, Walter Sislus. All these pictures are given there. These are the freedom fighters. So यहाँ द लगाया, इसलिए द लगाया. द का मीनिंग सिर्फ ये 6 आदमी जो पिक्चर में दिया वो नहीं है, उनका क्वालिटी. सी एक प्रॉपर नाउन के साथ द लगा जब लगाता है उसका मीनिंग है ऑलिवर टिम्बू का जैसा क्वालिटी, उस तरफ का कैरेक्टर का जैसा हिम्मत वाला, उस तरफ का व्यक्ति लोग को ये ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी, ये वाइट पीपल का जो निर्दयता, निष्ठुरता, ये इसका कारण से एक नया पेट्रियट्स पैदा हुआ. टिम्बू का जैसे, वॉल्टर सिस्लूस का जैसा, चीफ लुथलूस का जैसा नया और पेट्रियट्स पैदा हुआ. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, मतलब जो पैदा हुआ असाधारण हिम्मत वाला आदमी, विवेक बुद्धि वाला आदमी, उदारता वाला आदमी ये देश में हुआ. और वो लोग आगे आया है और उस तरफ का आदमी को और देश नहीं देखेगा और आगे नहीं देगा. उस तरफ का आदमी था जो ये साउथ अफ्रीका का मिट्टी के लिए, अपना राइट्स के लिए, अपना ब्लैक पीपल का राइट्स के लिए लड़ने के लिए आगे आया है. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. परहैप्स
it requires such depths of oppression to create such heights of character. He is saying perhaps शायद इस तरफ का कैरेक्टर बनने के लिए, इस तरफ का स्वभाव, इस तरफ का आदमी ये देश में होने के लिए वो लोग को बहुत उन लोग के साथ बहुत जुल्म हुआ, जुल्म का ये गहराई, उसी का वजह से इस तरफ का कैरेक्टर बना है, उस तरह का व्यक्ति ये साउथ अफ्रीका का मिट्टी में जन्म लिया है और आगे आया है, क्योंकि उस तरफ का क्रूएल्टी, द पीपल हैड टू फेस लॉट्स ऑफ क्रूएल्टी एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रूएल्टीज लॉट्स ऑफ लीडर्स वे born. Not only the leaders which is given in the picture, the same characters of such characters were created. So perhaps it requires a depths of oppression to create such heights of character. So he is saying जुल्म का जो गहराई इतना ज़्यादा था, तो इस तरफ का जो पेट्रियट्स और जन्म हुआ. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. He is saying, मेरा कंट्री रिच है, अमीर है. क्या चीज़ में अमीर है? मिनरल्स में, खनिज पदार्थ में रिच है, अमीर है. एंड जेम्स मतलब प्रेशियस स्टोन्स है, कीमती पत्थर को जेम्स बोलता है. जैसा डायमंड मीन्स हीरा का जैसा, हीरा, रूबीस, ये सब जेम्स है जो बहुत कीमती पत्थर है, जो पृथ्वी का नीचे में हम लोग को मिलता है. सो ही इज सेइंग माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बेनेथ इट्स सॉइल. मेरा कंट्री बहुत अमीर है, मेरा कंट्री का मिट्टी का नीचे बहुत कीमती मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, बहुत प्रेशियस स्टोन्स है, जेम्स है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता है, एक देश का सबसे बड़ा संपत्ति वो देश का लोग है, वो देश का आदमी है. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, मतलब वो वेल्थ प्योरेस्ट डायमंड्स है. वो देश का जो लोग है वही सबसे कीमती पत्थर है, शुद्ध पत्थर वहाँ का आदमी है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades means साथी लोग, in the struggle that I learned the meaning of courage. So यही कष्ट में जो मेरा दोस्त लोग का साथ, मेरा साथी लोग का साथ, struggle that I learned the meaning of courage, यही स्ट्रगल जो जब मेरा दोस्त लोग का साथ मैं जब रहा और उन लोग के साथ जब स्ट्रगल मीन्स जो कष्ट हुआ, तब हमको करेज, हिम्मत का अर्थ क्या है, सही अर्थ हमको समझ में आया. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने बार बार देखा है पुरुष और महिलाओं अपना जान खतरा में रख के, कितना एक कारण के लिए, एक आइडिया. व्हाट इज द आइडिया हियर? एक योजना मतलब अपना देश का जो राइट्स के लिए, ब्लैक्स का जो राइट्स के लिए, मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाओं अपना लाइफ रिस्क में, खतरा में करके वो लोग लड़ने आगे आया है. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. मैंने देखा है men एकदम आगे खड़ा होके attacks and torture, लड़ाई के आगे सामने करते हुए, लड़ाई को आगे सामने करते हुए. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. Without breaking means they were very active. वो लोग हरा नहीं है, ब्रेकिंग नहीं किया मीन्स वो लोग हरा नहीं है. ताकत था, showing a strength and
रेसिलिएंट दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो लोग का कितना हिम्मत, औरत जो आदमी लोग लड़ने के लिए जो आया वो लोग का हिम्मत कितना है, और वो लोग हारा नहीं है, फिर वापस आते थे। रेसिलिएंट, रेसिलियंस मीन्स लौट के आना, लौट के आना, लौट के आना मतलब जो कितना भी लड़ाई हुआ है वो लोग हारा नहीं है, कितना वाइट्स उन लोग को दबाने का कोशिश किया लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटा है, फिर कितना भी उन लोग को दबाने के लिए कोशिश किया फिर वो लौट के आते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, दैट वो जो स्ट्रेंथ और रेसिलियंस दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन, वो कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकता। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. So Nelson Mandela is saying, जहाँ तक मैं सीखा है करेज के बारे में, जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने अनुभव जो किया है, करेज हिम्मत मतलब क्या होता है? हिम्मत का मतलब जो हिम्मत जो सोचता है, हिम्मत मतलब जो डर नहीं है वो नहीं है, जो डर को सामने करके उसको जो जीता है उसी को हिम्मत वाला बोलता है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Triumph over it means victory over it, उसका जीत, जो डर का जीत जो होता है, जो डर को सामने करके उसको जीत जो होता है उसी को हिम्मत वाला बोलता है। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Overcome and take control of that fear. जीत को मतलब वो डर को जो जीतने का व्यक्ति को बोलता है करेज। करेज मीन्स हिम्मत वाला, उसको हिम्मत वाला बोलता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई जन्म लेता है तो नफरत करने के लिए सीख के नहीं आता है। जैसे नफरत करता है, किसी का स्किन ब्लैक है, किसी का चमड़ा ब्लैक है, काला है, नहीं तो उसका भूमिका क्या होता है, जो गरीब है, नहीं तो उसका रिलीजन मीन्स हिंदू, मुस्लिम और दूसरा क्रिश्चियंस, उस रिलीजन्स का बेसिस में जो नफरत करने के लिए कोई जन्म होता है तो सीख के नहीं आता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, आदमी लोग नफरत करने के लिए यदि सीख लेता है तो नेल्सन मंडेला बोल रहा है इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। यदि वो लोग नफरत करने के लिए, हेट मीन्स नफरत करने के लिए सीख सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, प्यार करने के लिए भी उन लोग को सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार ऐसा चीज है जो प्राकृतिक नेचुरली इंसान का हृदय में होता है, और नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। इट्स ऑपोजिट मीन्स हियर मीन्स हेट्रेड, हेट को ऑपोजिट बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट को जो लव नेचुरली आता है, ऑपोजिट मीन्स हेट, यहाँ ऑपोजिट का मीनिंग हेट हुआ। सो हेट जो चीज है वो ह्यूमन बीइंग्स को सिखाया जाता है, बोल के सिखाया जाता है, सोसाइटी से आदमी सीखता है, लेकिन लव जो चीज है नेचुरली आदमी का, इंसान का हृदय से आता है। That is what Nelson Mandela is saying. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. But it was enough to reassure me and keep me going. He's saying even in the grimmest times in prison, जो सबसे दुख मतलब सैड टाइम, grimmest means सबसे दुख समय मतलब कष्ट समय, वो बहुत दुखी था उस समय में, जो प्रिजन में, जो प्रिजन मीन्स जेल में जो सबसे मेरा कष्ट समय में
मैं और मेरा साथियों, when my comrades means साथियों, were pushed to our limits मतलब हम लोग का जो कष्ट जो है, वहाँ जो सफरिंग है, वो सीमा का मतलब पार हो गया था, मतलब it was at most मतलब लास्ट मतलब इतना ज़्यादा सफरिंग था उस समय भी. I would see a glimmer of humanity in one of the guards. उस समय में he saying I would see a glimmer of humanity. मैं देख सकते थे मानवता की झलक एक पुलिस ऑफिसर में, वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर, जेल का एक पुलिस ऑफिसर में देख सकते थे. मंडेला का कहना है सब लोग क्रूअल नहीं है, कुछ ना कुछ आदमी है ये दुनिया में जिसको मानवता है, ह्यूमैनिटी है, जो दयालु है. सो ही से सब लोग क्रूअल नहीं है. सो इसलिए ही सेइंग परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंड के लिए उन्होंने जो वन ऑफ द पुलिस गार्ड में मानवता का इंसानियत जो देखा है, और दैट इज व्हाई ही सेइंग दैट वाज इनफ, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. यही चीज जो उनका एक गार्ड में ह्यूमैनिटी उन्होंने देखा है, वही उनको काफी था जो हिम्मत दिलाया उनको, और हिम्मत दिलाया, that reassured me, that was enough to reassure me and keep me going. Keep me going means उनको हिम्मत दिया और आगे जाने के लिए, ये लड़ाई में आगे जाने के लिए वही काफी था. Man's goodness is a flame. मंडेला is saying मनुष्य का गुडनेस, अच्छापन एक ज्वाला जैसा है, फ्लेम जैसा है. इट इज जस्ट लाइक अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन. वो छुपा सकता है, हिडन मीन्स छुपाना, वो छुपा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश्ड मीन्स पुट इट ऑफ, बुझाना. सो मैन का, आदमी का जो अच्छापन एक ज्वाला जैसा है, वो छुपा सकता है लेकिन वो बुझा नहीं सकता है. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Nelson Mandela is saying, in life में हर आदमी को twin obligations है. Twin means दो, obligation कर्तव्य, duty. So life में हर आदमी को दो obligations है, दो duty है. Obligations to his family, उसमें एक duty, पहला obligation अपना परिवार, फैमिली के लिए. To his parents, वो एक व्यक्ति को अपना फर्स्ट ऑब्लिगेशन अपना परिवार के लिए, पेरेंट्स को, माता पिता को. टू हिज वाइफ, अपना पत्नी के लिए. एंड चिल्ड्रन, बच्चा के लिए. एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन, जो दूसरा ऑब्लिगेशन है, टू हिज पीपल, अपना लोग के लिए. हिज कम्युनिटी, उनका समुदाय के लिए. और एंड हिज कंट्री, उनका देश के लिए. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations. हर आदमी अपना ये ड्यूटी, जैसे बोला है ना, दो obligations है, तो एक मानवीय समाज में हर आदमी को इस तरफ का ऑब्लिगेशंस, अपना इंक्लिनेशन क्या होता है, अपना इच्छा से, अपना पसंद से, और अपना एबिलिटीज मीन्स अपना सामर्थ्य, अपना क्या कर सकता है, तो वो एबिलिटी का अनुसार एक ह्यूमन सोसाइटी में, एक मानवीय समाज में वो पूरा कर सकता है. लेकिन यहाँ नेल्सन मंडेला बोल रहा है, लेकिन मेरा जो कंट्री में
लाइक साउथ अफ्रीका जैसा मेरा कंट्री में वो पॉसिबल ही नहीं था. इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन. मतलब मेरा कंट्री में वो इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था उस तरफ का एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, मेरा कर्तव्य पूरा करने के लिए. क्योंकि कारण क्या है, मेरा जन्म, मैंने काला होके जन्म हुआ है, वही कारण से ये ऑब्लिगेशन, ये कर्तव्य, मेरा ड्यूटी कर्तव्य हम निभा नहीं सकते थे. कारण क्योंकि मैं एक ब्लैक बन के जन्म लिया है, यही कारण से. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में एक मैन ऑफ कलर मीन्स ब्लैक, नीग्रो को बोल रहा है मैन ऑफ कलर. जो यदि वो ब्लैक आदमी है तो वो एक इंसान का जैसे जीने के लिए कोशिश करेगा, तो ही वॉज पनिश्ड, उनको दंडित किया जाते थे और उनको आइसोलेटेड मीन्स अलग किया जाता था. इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका में यदि एक आदमी अपना ड्यूटी, जैसे नेल्सन मंडेला बोल रहे, दो ऑब्लिगेशंस है, एक फैमिली का साथ, एक दूसरा ऑब्लिगेशन अपना लोगों का साथ. सो यदि साउथ अफ्रीका में एक आदमी जब कोशिश करेगा अपना ड्यूटी अपना लोगों के लिए करने के लिए यदि कोशिश करते, तो ही वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली. उसको इनएविटेबली मीन्स कंपल्सरली, मीन्स विदाउट कंपल्सरली ही वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज फैमिली. उसको अपना परिवार से उसको अलग करके and his home and was forced to live a life apart. मतलब यदि एक आदमी अपना लोग को सेवा करने के लिए कोशिश करे, वो लोग के लिए जीने के लिए, वो लोग का ड्यूटी, वो सेकंड ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए कोशिश यदि करते, तो उनको अपना फैमिली से, वो अपना घर से उनको अलग, जबरदस्ती अलग किया जाता था और उसको वैसा जिंदगी जीना पड़ता था. a twilight existence. twilight means half darkness में, अंधकार में उनको जीना पड़ता था. वो भी गुप्तता और रिबेलियन, उनको ऐसा जिंदगी जीना है. जो भी व्यक्ति अपना लोग के लिए, अपना देश के लिए जो लड़ाई करने के लिए उनका ऑब्लिगेशन, उनका कर्तव्य निभाने के लिए कोशिश किया जाता, तो उनको एक twilight existence of secrecy and rebellion means उनको गुप्त में, मतलब वो ड्यूटी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे, वो छुप के मतलब विरोध करना पड़ता था उसको. द twilight existence of secrecy and rebellion. twilight means यहाँ हाफ लाइट, डार्कनेस, वही हुआ twilight. और गुप्तता से, secrecy means गुप्तता, सीक्रेट, और सीक्रेटली वो रिवोल्ट करना पड़ता था, विरोध करना पड़ता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that it was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. So शुरू में he is saying, Nelson Mandela is saying, I did not in the beginning choose to place my people above my family. मतलब शुरू में मेरा फैमिली को मैं इम्पोर्टेंस पहले देते थे, मेरा लोग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं मेरा फैमिली को देते थे. लेकिन जब से मैं कोशिश किया था मेरा लोग को सेवा करने के लिए, तब हमको समझ में आया, I found that I was prevented from fulfilling my obligation. तब मुझे I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और पति का कर्तव्य करने से रोका गया था. I was not born
with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. So नेल्सन मंडेला बोल रहा है, जब हम जन्म लिया है उस समय में मैं आज़ादी के लिए प्यासा नहीं था, क्योंकि I was born free. जिस टाइम मैंने जन्म लिया था तो मैं फ्री था, मैं आज़ाद था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मतलब जिस टाइम हम जन्म हुआ उस समय में हम आज़ाद था, हर तरीक़ा से मैं आज़ाद था जहाँ तक मैं जानते थे. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, हम आज़ाद था जो खेत में, मेरा माँ का घर झोपड़ी का पास जो खेत है वहाँ दौड़ के खेलने के लिए मैं आज़ाद था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरा गांव से, विलेज से जो गया हुआ नदी है, एक साफ क्लियर नदी गया हुआ है, वो नदी में जाके ठहरने के लिए, स्विम करने के लिए मैं आज़ाद था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं आज़ाद था. मिलीज मतलब भुट्टा पका के खाने के लिए कोई हम लोग को नहीं रोकते थे, मैं आज़ाद था. राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीमे चलने वाले सांडों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था. सो मैं जब बच्चा था ये सब करने में मैं आज़ाद था. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So नेल्सन मंडेला बोल रहा है, जब तक मैं I obeyed my father, जब मेरा पापा का बात माना और abided by the customs of my tribe, मैं पालन किया, मेरा रीति रिवाज का अनुसार मैं सब कुछ पालन किया, मेरा गोत्र का रीति रिवाज का अनुसार मैंने जब सब कुछ पालन करके जब हम आगे जा रहे थे तो कोई तकलीफ नहीं था. I was not troubled by the laws of man or God. जब मैं मेरा फादर का और मेरा समाज का, मेरा गोत्र का रीति रिवाज को पालन जब किया है, हमको कोई ट्रबल नहीं था, कोई तकलीफ, कोई हमको परेशान नहीं किया. आदमी का कानून ना परेशान किया, ना भगवान का कानून हमको परेशान किया है. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Nelson Mandela is saying, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. उन्होंने पहले बोला है, जब मैं बच्चा था मैं हर तरफ का फ्रीडम एंजॉय किया, लेकिन जब उनका बचपन में उनको समझ में आया उनका जो फ्रीडम है वो एक इल्यूशन था. इल्यूशन मीन्स मोह माया, भ्रम. मतलब इल्यूशन का मीनिंग ये है, इल्यूशन मीन्स तुमको लगता है वहाँ कुछ है लेकिन असली में वो है नहीं है. सो दैट इज इल्यूशन. सो जब हमको पता लगा है, मैंने एक जवान आदमी बना है, तब हमको पता चला है that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब हम एक जवान लड़का था तब हमको समझ में आया है मेरा फ्रीडम हमसे छीना है, हमको फ्रीडम नहीं है. तब हम फ्रीडम के लिए हमको फ्रीडम का प्यास लगा. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night. So, he's saying, what is freedom to him? At first, as a student, जब एक student था, तो मेरे लिए freedom ये था कि एक transitory freedom of being able to stay out at night. Transitory means what is transitory? Unstable, अस्थाई. अस्थाई मतलब it's not permanent.
वो एक फ्रीडम था। जब हम एक लड़का था, मेरे लिए फ्रीडम ये था जो रात को ज़्यादा टाइम बाहर रहना और रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो चीज़ पसंद है वो पढ़ना, एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ हम जाना चाहता है वहाँ हम जा सकता है, एंड गो वेयर आई चोज, जहाँ हम चाहते थे, क्योंकि पेरेंट्स का रिस्ट्रिक्शंस होते थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस ओवरकम करना। उनके लिए फ्रीडम वही था। एज अ स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट था, उनके लिए फ्रीडम का मतलब है, मतलब रात को ज़्यादा टाइम बाहर जाना है तो पेरेंट्स डांटता है, बाहर जाएगा तो ज़्यादा टाइम रहेगा तो पेरेंट्स डांटता है, तो उनके लिए वो फ्रीडम था। और पढ़ना, जो पसंद है वो पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स तो बुक्स का अलावा दूसरा, मतलब जो चीज़ रिस्ट्रिक्शंस होता है, क्या तुम पढ़ेंगे, तो वो उनके लिए फ्रीडम था। और कहीं बाहर जाना है तो अपना इच्छा से जहाँ वो जाना चाहता है वही चीज़ वो चाहते थे, तो वही था उनके लिए फ्रीडम। Later, as a young man in Johannesburg, I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. So he is saying, उनका अलग अलग तरीका से वो फ्रीडम क्या था जब छोटे में, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब वो जवान आदमी बन गया, ही वॉज इन जोनासबर्ग एक जगह का नाम है। जब वो जोनासबर्ग में था, I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. So he saying I earned means यहाँ wish, वो इच्छा करते थे, मतलब उनका इच्छा यही था। तो बेसिक मीन्स बुनियादी, जो बेसिक और माननीय फ्रीडम, मतलब ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मतलब उनका जो क्षमता है, उनका क्या क्षमता है उसका अनुसार वो प्राप्त करना चाहते थे। उनका मतलब जैसे कमाने के लिए, उनका ज़रूरत के लिए, वो कमाने के लिए, द अर्निंग ऑफ माई कीप मीन्स वो चाहते थे जो कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मतलब शादी करने के लिए, जो पसंद लड़की से शादी करने के लिए और एक फैमिली रखने के लिए, एक परिवार होने के लिए, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ये सब चीज़ उनके लिए एज अ यंग मैन, उनके लिए फ्रीडम का मतलब अपना क्षमता, पोटेंशियल मीन्स क्षमता का अनुसार वो अपना पोटेंशियल, वो उनका ऊपर कितना कैपेसिटी है उसका अनुसार वो कमाना चाह रहे थे, फैमिली रखना चाह रहे थे। और वही चीज़, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो फ्रीडम, वो फ्रीडम में रोक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए जो वैध जीवन में, वही उनके लिए एज अ यंग मैन फ्रीडम था। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. So he said, लेकिन बाद में जब मैं धीरे धीरे, I slowly saw that only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो he saying, सिर्फ मैं फ्री नहीं था, पहले मैं सोचा था मैं फ्री नहीं था, लेकिन मैं ये चीज़ हमको समझ में आया, मेरा ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरा भाई लोग, मेरा सिस्टर लोग, मेरा बहन लोग, वो लोग भी फ्री नहीं है, वो लोग को भी आज़ाद नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेन्ड। ये हमको समझ में आया, जो सिर्फ मेरा फ्रीडम, मेरा आज़ादी में कटौती नहीं हुआ, लेकिन मेरा जैसा दिखने में सबका आज़ादी में कटौती हुआ। कहने का मतलब मेरा जैसा कैसे, मेरा जैसा मतलब जो ब्लैक्स, मेरा जैसे जो भी ब्लैक्स है, जो मेरा ब्लैक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सबको आज़ादी नहीं था। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Who looked like I did means I was also a black, and my people, they were also black, so they also did not have freedom.
That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, जब ज्वाइन मीन्स शामिल किया था, जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस शामिल किया हुआ था, उस समय में हमको फ्रीडम का एहसास हुआ, फ्रीडम का प्यास हुआ. फ्रीडम मीन्स आज़ादी. became the greater hunger for the freedom of my people. जो मेरा हंगर है, वो मेरा हंगर से ज़्यादा मेरा आदमी लोग का, मेरा लोग का जो प्यास है, आज़ादी का जो प्यास, वो मेरे लिए अधिक ज़रूरत लगा कि वो लोग को सबसे ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, हमसे ज़्यादा वो लोग को फ्रीडम दिलवाना. यही मेरा दिमाग में आया जब हम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जब ज्वाइन किया है. मेरा जनता का, मेरा लोग का फ्रीडम, मेरा फ्रीडम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमको समझ में आया. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, यही चीज़, यही इच्छा मेरा लोग के लिए, मेरा लोग एक डिग्निटी के साथ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी मीन्स एक मर्यादा, प्रतिष्ठा का साथ और आत्मसम्मान का साथ जीने का जो वो लोग का जो फ्रीडम है, वो लोग का जो इच्छा, यही चीज़ मेरा लाइफ को एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे लाइफ को प्रफुल्ल किया. That transformed a frightened young man into a bold one. यही चीज़ हमको बदल दिया है. मैं एक डरा हुआ जवान आदमी था, लेकिन हमको बोल्ड बनाया, हिम्मत वाला बनाया, क्योंकि मेरा लोग के लिए, मेरा लोग का फ्रीडम के लिए, वो लोग का डिग्निटी के लिए, वो लोग को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेरे में चेंजेस आया, मैंने बदला. ट्रांसफॉर्म्ड मीन्स बदलना. दैट फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन. सो आई बिकेम अ बोल्ड मैन. मैं एक हिम्मत वाला आदमी बना. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. और यही चीज़ मेरा लोग का आज़ादी के लिए मैं एक क्रिमिनल बना. क्रिमिनल मीन्स अपराधी, क्योंकि मैं पहले एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी था. मैं एक कानून का पालन करने वाला एक प्रतिनिधि, अटॉर्नी मीन्स प्रतिनिधि था. लॉ अबाइडिंग मीन्स कानून का पालन करने वाला एक प्रतिनिधि था. लेकिन वो एक कानून पालन करने का एक प्रतिनिधि से मैंने क्रिमिनल बना. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, परिवार को प्यार करने वाला एक पति था. वहाँ से मैं एक आई बिकेम अ मैन विदाउट अ होम, मतलब बिना घर का एक व्यक्ति बन गया हम. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक. मैं यही मेरा लोग का आज़ादी के लिए हमको एक साधु का जैसा जिंदगी जीना पड़ा, क्योंकि मैं एक लाइफ लविंग आदमी था, जीवन प्रेमी आदमी था. मैं लाइफ लविंग मैन मीन्स जीवन प्रेमी आदमी था. वहाँ से हमको एक साधु का जैसा, मॉन्क मीन्स साधु, सन्यासी, साधु का जैसे जीना पड़ा. सो मेरा जो लोग के लिए हमको बहुत चीज़ बदलना पड़ा. और he saying, see, that animated my life, that spirited my life, मेरे लाइफ को चेंज किया. I became a different person. I became a bold person. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. नेल्सन मंडेला बोल रहे, मैं
अगला आदमी के जैसा पुण्य या आत्म बलिदान करने वाला नहीं हूँ. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. So he is saying, लेकिन जब हमको जो little और limited freedom means सीमित स्वतंत्र था, जो सीमित स्वतंत्र वो, और थोड़ा से जो फ्रीडम जब उनको मिला वो भी वो आनंद नहीं ले सकते थे, कारण क्योंकि उनका प्रजा, उनका लोग आज़ाद नहीं था, तो थोड़ा भी फ्रीडम में एंजॉय नहीं कर सकते थे. उनका कहना सीधा यही था, जब मैं थोड़ा फ्रीडम हमको जो मिला है वो फ्रीडम भी हमको आनंद नहीं ले सकते थे, कारण जब मेरा लोग फ्रीडम में नहीं है तो थोड़ा भी फ्रीडम में कैसे एंजॉय कर सकता है, मैं कैसे उसको आनंद ले सकते थे. फ्रीडम इज indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. So he is saying freedom is indivisible. Indivisible means cannot be separated. यहाँ फ्रीडम ऐसा चीज़ है, हम लोग का ज़िंदगी में फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. वो फ्रीडम को एक ह्यूमन बीइंग से अलग नहीं कर सकता है. सो ही इज सेइंग द चेन्स मीन्स जंजीर. यहाँ चेन्स मीन फ्रीडम नहीं देने के लिए वही बोल रहा है जंजीर. चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. सो जो चेन एक आदमी का ऊपर, एक आदमी को जो यदि फ्रीडम नहीं है तो वो सबको फ्रीडम नहीं है मतलब है. उसी तरफ द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी, मतलब जो चेन सब आदमी को ऊपर चेन लगा हुआ, चेन का मतलब फ्रीडम नहीं है, तो उसका मतलब वो मेरा भी ऊपर जंजीर लगा हुआ है. कहने का मतलब यहाँ चेन का मीनिंग क्या है? चेन मीन्स नॉट द फिजिकल चेन. फिजिकल चेन जो दिख रहा है वो जंजीर वो नहीं है. यहाँ मीनिंग चेन का मतलब फ्रीडम है. जब हमको फ्रीडम नहीं है, जब मेरा एक आदमी को फ्रीडम नहीं का मतलब सबको फ्रीडम नहीं है, और जब मेरा सब आदमी को जब फ्रीडम नहीं है उसका मतलब वो हमको फ्रीडम नहीं है. दिस इज व्हाट ही मीन टू से. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. So he is saying, मैं जान रहा है that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. So oppressor means अत्याचारी. जो अत्याचारी को मीन्स जैसे पीड़ित, ऑप्रेस्ड मीन्स पीड़ित, जैसे पीड़ित को आज़ादी देता है. लिबरेटेड मीन्स मुक्त करना, फ्री करना. ही शुड बी फ्रीड. सो एक ऑप्रेस्ड को, एक पीड़ित को मुक्ति देना है, फ्री करना है. उसी तरफ एक अत्याचारी को भी फ्री करना है, क्योंकि A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जिस व्यक्ति जब एक आदमी जब दूसरा आदमी का जब आज़ादी ले लेता है तब वो भी एक prisoner of hatred है, बंदी है. prisoner बंदी है, जो जेल में बंद किया हुआ एक व्यक्ति को prisoner बोलता है. यहाँ वो जो व्यक्ति, जो ऑप्रेसर, जो अत्याचारी भी, वो भी एक प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नफरत का बंदी है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. बिहाइंड द बार्स मीन्स जेल में. कहने का मतलब बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. यहाँ प्रेजुडिस का, इससे प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस मीन्स नफरत है, बिना वजह, बिना रीजन जब नफरत करने के लिए बोलता है तो वही प्रेजुडिस बोलता है. सो वो ऑप्रेसर
वो भी एक बंदी है. So he should be liberated. उनको भी मुक्ति देना है. जो अत्याचारी को भी मुक्ति देना, जो पीड़ित के साथ अत्याचारी को भी मुक्ति देना है. क्या चीज से मुक्ति देना है? प्रेजुडिस से. प्रेजुडिस मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस? नफरत करना. किसी को नफरत करता है बिना रीजन, बिना वजह. एंड नैरो माइंडेडनेस, तंग दिला. नैरो माइंडेडनेस, स्मॉलनेस, थिंकिंग वेरी नैरो माइंडेडली, छोटा सोच. सो उसी से उनको भी आज़ादी देना बहुत ज़रूरत है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So Nelson Mandela is saying, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. जब हम लोग किसी का आज़ादी को ले लेता है, तब हम लोग खुद आज़ाद नहीं है. यही मंडेला को कहना है. जब हम किसी का फ्रीडम को रोक देता है, तब हम लोग खुद फ्री नहीं है. हम लोग खुद आज़ाद नहीं है. Just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me. जैसे जब मेरा आज़ादी हमसे कोई छीना जाएगा तो मैं फ्री नहीं है, मैं आज़ाद नहीं है. उसी तरफ दूसरा व्यक्ति जब उसका आज़ादी ले लेगा तो जो लेने वाला आदमी भी आज़ाद नहीं है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दोनों, जो पीड़ित और जो अत्याचारी, दोनों मानवता से लूटा गया है. मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी. व्हाट इज ह्यूमैनिटी? दोनों से, ऑप्रेस्ड जो पीड़ित है और जो अत्याचारी है, दोनों एक ही जैसा है. दोनों में ह्यूमैनिटी वो लोग को ऊपर ह्यूमैनिटी है नहीं है. कारण क्या है? दोनों उसी से, दे आर रॉब्ड मीन्स लूटा गया है. So the oppressed and the oppressor alike both are robbed of their humanity. Means humanity is taken away from both these people, the oppressed and the oppressor. Like means एक जैसा, जैसे दोनों बराबर. So this is the end of the lesson. I hope you have understood the lesson. Thank you.